आदाब केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से महिला लेखिकाओं का अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित। कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद लोग बिजली का बिल भरने से कर रहे हैं इनकार। नई संसद का राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने पर अड़ी कांग्रेस को जेडीएस ने दिया जवाब। कुमारस्वामी बोले, हम कांग्रेस के गुलाम नहीं। राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल के लिए दी एनओसी। उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम गाने को लेकर हुआ बवाल। बीजेपी और एआईएमआईएम पार्षदों के बीच जमकर हुई हाथापाई। टीपू सुल्तान की तलवार 140 करोड़ रुपए में बिकी। लंदन में हुई नीलामी में रिकॉर्ड। अब समाचार विस्तार से। 25 मई को शाम 6 बजे बसवा केंद्र विद्यानगर बीदर में जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर की ओर से श्री चंद्रकांत मसानी वरिष्ठ संवाददाता द्वारा चिलकोडुगु टोकरे दंपत्ति के 35वें कल्याण महोत्सव के अवसर पर 55 महिला लेखिकाओं का अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें पूज्य श्री डॉक्टर MNP शिवानंद महास्वामी श्री गुरु बसवेश्वर संस्थान मठ हुलसूर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। समारोह का उद्घाटन प्रोफेसर BS बिरादर माननीय चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ बीदर ने किया। सुरेश चंद्र शेट्टी अध्यक्ष जिला कन्नड़ साहित्य परिषद बीदर ने अध्यक्षता की। डॉक्टर पूर्णिमा जी अध्यक्ष ज्ञान सुधा शैक्षणिक संस्थान बीदर मुख्य अतिथि रही। इनके अलावा श्री चंद्रकांता मसानी जिला वरिष्ठ संवाददाता बीदर, श्री शरणप्पा मिथारा, श्री राजेंद्र कुमार गंडगे, श्री सुरेश और दूसरे उपस्थित रहे। केपी न्यूज के कैमरामैन संतोष का कवरेज। ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವತಿಯಿಂದ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯ ವರದಿಗಾರರಂತ ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿರುವಂಥ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಸಾನಿ ಸರ್ ಅವರ ಒಂದು ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಜೊತೆಗೇ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂಥ ಶ್ರೀ ಶಿವಶಂಕರ್ ಟೋಕ್ರೆ ಅವರ 35ನೇ ಮದುವೆ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇವತ್ತು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು। ಈ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವವನ್ನು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಪವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಜೊತೆಗೇ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ನೂತನ ವಧುವರರನ್ನು ಅಂದರೆ ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು 35 ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಒಂದು ಸನ್ಮಾನಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಿದೆ। ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಗೌರವಿಸೋದು ಅದು ನಾಗರಿಕ ಸಮಾಜದ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಸಾನಿ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲಕ್ಕೆ ನಾವಂಥ ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೂಡು ಕುಟುಂಬಗಳು ಮಾಯ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾರಿ ಹೊಸ ನವ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಇಂದು ಜಿಲ್ಲಾ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಹಿರಿಯ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವರದಿಗಾರರಾದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ್ ಮಸಾನಿಯವರ ಬೀಳ್ಕೊಡುಗೆ ಸಮಾರಂಭ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ 35ನೇ ವರ್ಷದ ಕಲ್ಯಾಣ ಮಹೋತ್ಸವದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ 35 ನವ ವಧುವರರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಇಷ್ಟೇ, ಇವತ್ತಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ। ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನಾ ಸಮಾರಂಭದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕೃತಿಗೆ ಕೌಶಲಿಸಿ ಕೃತಿಗೆ ಕಾರಣೀಕರ್ತ 140 ಕವಿಗಳಿಗೆ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಂದ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಜೊತೆಗೆ ವಿನೂತನವಾಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು 35ನೇ ವರ್ಷದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ 35 ನೂತನ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ। ಅವಿಭಕ್ತ ಕುಟುಂಬ ನಶಿಸಿ ಹೋಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೆ। ಪ್ರಜಾವಾಣಿಯಲ್ಲಿ 6 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ರಾಯಚೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಬಹುಶಃ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮರಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ। ಭಾಳ ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜದವರು ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮದವರು ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಬಹುಶಃ ನಾನು ಮಾಡಿದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಣಿಸಿ ನನಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ ಚಿರಋಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ।
ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡವರು ಸಹಿತ ನನಗೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞತೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की है. उसके बाद लोग बिजली का पिछला बिल भरने से इनकार कर रहे हैं. बीदर के एक इलाके में बिल कलेक्टर जब एक घर में बिजली का बिल भरने के लिए आदमी से कहने लगा तो उस आदमी ने नाराजगी जताते हुए सिद्धरामैया और डीके शिव कुमार के घर जाने को कहा. वीडियो में आप साफ सुन सकते हैं कि वो क्या कह रहा है. एपी न्यूज के कैमरामैन संतोष की रिपोर्ट. ಸರ್ ಈಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಬರ್ತದಂದ್ರೆ ಬಿಲ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕಟ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಕಟ್ಬೇಕು ಸರ್? ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರು ನಾವು ಕಟ್ಟಲ್ಲ ₹1. ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳ ಇಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ಇದ್ರೆ ಈಗ ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಈಗ ಅದೇ ಸರ್ಕಾರ ಆಗ್ಯದಲ್ರಿ, ಈಗ ನಾವ್ ಯಾಕೆ ಕಟ್ಟಲ್ಲ? ಅವ್ರು ಇನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ₹1 ಕಟ್ಟಲ್ಲ ಸರ್. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರಿ, ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಮನೆಗೆ ಅವ್ರಿ, ನಾವು ₹1 ಕಟ್ಟಲ್ಲ. ಮತ್ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಬಂದ್ರಿ ಮತ್ ಮನೆಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಲತ್ತಿ ತಿಂತೀರಿ, ಒಡ್ಯಾಡ್ಸಿ ಹುಡ್ತಿದ್ದೇವ್. ಕಲ್ಸಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ಕೈಲಿ ಉಡ್ಸ್ಬೇಕಾಗ್ತಾವ, ಗಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಳು ಹುಡಿತೇವ್. ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಲತ್ತಿನೇ ತಿಂತೀರಿ. नए संसद भवन के उद्घाटन की तारीख जैसे जैसे करीब आती जा रही है, सियासी घमासान बढ़ता ही जा रहा है. कांग्रेस समेत 21 विपक्षी दलों ने उद्घाटन समारोह का बहिष्कार करने का फैसला किया है. इन दलों की मांग है कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री के बजाय राष्ट्रपति के हाथों होना चाहिए. कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने भी इस मांग के समर्थन में बयान दिया है. शुक्रवार 26 मई को मीडिया से बात करते हुए डीके शिव कुमार ने कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा किया जाना चाहिए. राष्ट्रपति की अपनी प्रतिष्ठा है, इसमें कोई शक नहीं है कि प्रधानमंत्री एक सिस्टम का हिस्सा है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शिलान्यास के समय भी राष्ट्रपति को नहीं आमंत्रित किया गया था. नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर मचे सियासी बवाल के बीच जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कांग्रेस को निशाने पर लिया है. कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव के समय कांग्रेस ने द्रौपदी मुर्मू के खिलाफ उम्मीदवार क्यों खड़ा किया था. उन्होंने कहा कि अब वे कह रहे हैं कि बीजेपी आदिवासियों का अपमान कर रही है. एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि ये सब केवल लोगों का ध्यान हटाने और समाज के लिए वर्ग से वोट हासिल करने के लिए है. उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के गुलाम नहीं हैं और अपना फैसला खुद लेंगे. जेडीएस नेता ने कहा कि हमें कांग्रेस का अनुसरण करने की आवश्यकता क्यों है. केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर विशेष कांकलेव की तैयारी की जा रही है. ये कांकलेव शनिवार यानी 27 मई को दिन भर चलेगा. इसमें 3 ब्रेकआउट सेशन होंगे. कानकलेव में समाज के गणमान्य व्यक्ति, बॉलीवुड स्टार आदि हिस्सा लेंगे. इसका उद्घाटन सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर करेंगे. इस कानकलेव में सरकार के 9 साल की उपलब्धियों पर चर्चा की जाएगी. ये कानकलेव दिल्ली के विज्ञान भवन में सूचना प्रसारण मंत्रालय आयोजित करेगा और ये कार्यक्रम दिन भर चलेगा. इसमें मोदी सरकार के वरिष्ठ मंत्री एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति हिस्सा लेंगे. मोदी सरकार के कामकाज के बारे में चर्चा होगी. अब वक्त तक ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं. हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद. 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर. देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7. नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें. बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर. फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297.
हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में इस साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9113018911, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी है। इस मामले की सुनवाई करते हुए राउज एवेन्यू कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए राहुल गांधी को नए पासपोर्ट के लिए 3 साल की एनओसी दी है। बता दें कि भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने एनओसी का विरोध करते हुए कहा था कि अगर राहुल गांधी को नए पासपोर्ट मामले में एनओसी दिया जाता है तो नेशनल हेराल्ड केस की जांच प्रभावित हो सकती है। एनओसी मिलने के चलते राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा पर बना सस्पेंस भी खत्म हो गया है। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति हो तो उसको पासपोर्ट अधिकतम 10 साल के लिए मिल सकता है, लेकिन ये स्पेशल केस है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में पार्षदों ने शपथ ग्रहण समारोह में जमकर बवाल मचाया है। मामला वंदे मातरम गाने को लेकर शुरू हुआ। भारतीय जनता पार्टी और एआईएमआईएम के पार्षदों के बीच हंगामा इतना ज्यादा बढ़ गया कि नौबत मारपीट तक आ गई। जिला प्रशासन के अलावा अधिकारियों ने मौके पर हालात को संभाला और पार्षदों को सभा स्थल से बाहर निकाला। भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों ने आरोप लगाया है कि जब वंदे मातरम समारोह में गाया जा रहा था उस दौरान ओवैसी के पार्षद अपने स्थान से खड़े नहीं हुए। एआईएमआईएम के पार्षदों की इस हरकत से बीजेपी के सदस्य नाराज हो गए। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में प्रशासन ने आज अतिक्रमण कार्य के विरुद्ध अभियान चलाकर बुलडोजर की कार्रवाई की है। प्रशासन ने अवैध रूप से कब्जा किए व्यापारियों को पहले ही नोटिस जारी कर दुकान हटाने को कहा था, जिसके लिए प्रशासन ने बाकायदा मुनादी भी कराई थी और अतिक्रमण वाले सभी स्थानों पर लाल पेंट से चिन्हित किया गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अतिक्रमणकारियों द्वारा चिन्हित स्थानों को खाली न करने पर बुलडोजर से अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई और दुकानों को ध्वस्त कर कब्जा किए गए स्थानों से अतिक्रमण हटवाया गया।
मामला जिला मुख्यालय के सुभाष बाजार के सब्जी मंडी परिसर का है, जहां पर व्यापारियों ने अपनी दुकान की सीमा के बाहर 3 टप्पर वो अस्थायी दुकानें रखकर कब्जा कर रखा था, जिन्हें पालिका प्रशासन ने पहले भी कई बार नोटिस जारी कर अतिक्रमण हटाने को कहा था। इसके अलावा आज हुई बुलडोजर की कार्रवाई से पहले भी व्यापारियों से अतिक्रमण हटाने को कहा गया था, जिसे व्यापारियों ने अनसुना कर दिया, जिसके बाद आज एसडीएम सदर, ईओ नगर पालिका, सीओ सदर व भारी पुलिस बल एवं पालिका कर्मचारियों की मौजूदगी में बुलडोजर चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। हमीरपुर यूपी से केपी न्यूज का संवाददाता रमाकांत विश्वकर्मा की रिपोर्ट। वर्तमान समय में शासन के निर्देशानुसार अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है। इसी के तहत आज नगर पालिका में अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने से पूर्व जो अवैध कब्जेदार है उनको नोटिस दी गई है तथा डुग्गी मुनादी करा दी गई है। इसके अलावा जो सरकारी जमीन है उसको चिन्हित भी किया गया है। कितनी जगहों पर अभी सुभाष मार्केट में अतिक्रमण हटाओ अभियान की कार्रवाई संपादित हो गई है। जिसके बाद फिर शहर में अन्य स्थानों पर भी हम लोग जा करके जहाँ पर भी अवैध कब्जा है वो हटवाया जाएगा। शायद 132 लोगों को नोटिस दी है। इसके अलावा मैंने चिन्हीकरण भी कराया, मुनादी भी लगातार कराई गई है। कई बार कहा जा चुका है, मैंने खुद जाकर रिक्वेस्ट करके कहा है कि हटा लीजिए, लेकिन वो लोग नहीं हटा रहे अपना सामान, तो बाध्य होकर आज मुझे कार्रवाई करें। सर किन किन जगहों पर अतिक्रमण कहाँ बुलडोजर? जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन सहयोग से। सर किन किन जगहों पर अतिक्रमण है और किस जगह बुलडोजर चलाया गया? वो मैंने चिन्हित कर रखा, उसकी लिस्ट में ऑफिस में आपको स्थानों पर आज कार्रवाई की गई? ऑफिस में आ जाइएगा, मैं वहीं देख के आपको बता दूँगा। मैसूरू के 18वीं सदी के शासक टीपू सुल्तान के ऐतिहासिक मूल्यांकन को लेकर दक्षिणपंथी और वामपंथी इतिहासकारों के बीच लगातार बहस होती रहती है। वो एक इतिहास के एक ऐसे किरदार हैं जो आज की राजनीति में एक बड़ा मुद्दा बने हुए हैं। विशेष तौर पर कर्नाटक में उन्हें लेकर राजनीतिक पार्टियां आमने सामने आ जाती हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि तमाम बहसों विवादों के बीच टीपू सुल्तान में लोगों की दिलचस्पी बनी हुई है। इसका एक नजारा तब देखने को मिला जब टीपू सुल्तान, जिन्हें टाइगर ऑफ मैसूरू भी कहा जाता है, कि निजी कक्ष से मिली तलवार ने लंदन में बोनहम्स के लिए भारतीय वस्तुओं की नीलामी के सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। रिपोर्ट्स के अनुसार इस सप्ताह हुई इस्लामी एवं भारतीय कला बिक्री में ये तलवार 1.4 करोड़ पाउंड जीबीपी में बिकी है। श्रीदेवी और बोनी कपूर की छोटी बेटी खुशी कपूर जल्द ही बॉलीवुड की दुनिया में कदम रखने वाली हैं। वो जोया अख्तर की फिल्म द आर्चिस से डेब्यू करने वाली हैं। ऐसे में उनके पिता बोनी कपूर ने खुशी के एक्टिंग कैरियर को लेकर बातचीत की है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कभी खुशी के बारे में सोचा भी नहीं था कि वो एक्टिंग की दुनिया में कदम रखेगी। बोनी ने कहा, जाह्नवी कपूर के साथ अब उनकी छोटी बेटी खुशी कपूर भी बॉलीवुड में अपना कैरियर बनाएंगी, जिसको लेकर वो काफी एक्साइटेड और नर्वस हैं। बोनी कपूर ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि उनकी बीवी का जब निधन हुआ था तो उनकी छोटी बेटी महज 16 साल की थी। उस दौरान मैंने और श्री ने खुशी के कैरियर के बारे में कुछ भी नहीं सोचा था, क्योंकि उस वक्त वो बच्ची थी। हमारे लिए उस वक्त ज्यादा जरूरी ये था कि खुशी की पढ़ाई अच्छे से हो। जब मुझे इस बात का पता चला कि खुशी अपनी बड़ी बहन की तरह एक्टिंग करना चाहती है तो मैंने उसके फैसले में उसका साथ दिया। वक्त है एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year
2022-23 विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हर इंसान की ख्वाहिश होती है अच्छा और स्वादिष्ट खाना खाए, और अच्छा और स्वादिष्ट खाना मिले तो दिल खुश हो जाता है। आपकी ख्वाहिश अनुसार स्वादिष्ट भोजन और बेकरी आइटम्स का एकमात्र केंद्र है पिस्ता हाउस मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी। देश और विदेश में अपने जायके का डंका बजाने के बाद हैदराबाद की मल्टी कजन फैमिली रेस्टोरेंट एंड बेकरी की एक ब्रांच अब आपके शहर बीदर में भी खुल गई है। मुख्य रूप से पिस्ता हाउस हलीम के लिए प्रसिद्ध है। इस फैमिली रेस्टोरेंट में आपको प्रसिद्ध जाफरानी बिरयानी, जाफरानी चाय के साथ साथ वेज और नॉन वेज भोजन के अलावा फ्रूट शैंपेन, लवाजा डिश, सूप, मरक, प्लाटर, फिश, प्रॉन्स और इंडियन वेज एंड नॉन वेज सभी प्रकार के फूड्स के अलावा दूसरी डिशेस उपलब्ध हैं। इसके अलावा बेकरी आइटम्स में बर्थडे केक, स्पेशल स्वीट डिशेस उपलब्ध रहेंगी। यहाँ पर बेहतरीन वातावरण में आप भोजन और चाय का आनंद ले सकते हैं। फौरी चलिए आइए और स्वादिष्ट व्यंजनों का स्वाद लीजिए। 20 से 25 मिनट में आपके ऑर्डर को पूरा किया जाएगा। पिस्ता हाउस न्यू ब्रांच, होटल गेटवे, अपोजिट रिलायंस पेट्रोल पंप, उदगीर रोड, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल info@pistahouse.in, वेबसाइट www.pistahouse.in। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर, बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है, जहां पर पीयूसी के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम पीयू कॉलेज फॉर साइंस में साल पीयूसी सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से एमबीबीएस की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन वीटीयू गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने आईआईटी दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। देखते हैं आगे के समाचार। बॉलीवुड स्टार्स की पॉपुलैरिटी इतनी है कि इनके हमशक्ल भी पॉपुलर हो जाते हैं। शाहरुख खान, सलमान खान और अमिताभ बच्चन की मिमिक्री तो बड़े बड़े कॉमेडियंस भी करते रहे हैं। वहीं सोशल मीडिया पर भी ऐसे आर्टिस्ट की कमी नहीं है, कई तो इनके हमशक्ल भी हैं। शाहरुख खान और अमिताभ बच्चन के बाद अब बॉलीवुड के डिस्को डांसर मिथुन चक्रवर्ती का एक हमशक्ल सामने आया है। मिथुन दा के इस हमशक्ल का वीडियो सोशल मीडिया पर भी खूब देखा जा रहा है। अंदाज और लुक्स में आप भी इस शख्स को देख एक बार धोखा खा सकते हैं। अकरम पाशा नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट से शेयर किए गए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स मिथुन चक्रवर्ती के स्टाइल में उनका ही डायलॉग बोलता नजर आता है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर में जिला कन्नड़ा साहित्य परिषद बीदर की ओर से महिला लेखिकाओं का अभिनंदन समारोह किया गया आयोजित। कर्नाटक की नई कांग्रेस सरकार ने 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा के बाद लोग बिजली का बिल भरने से कर रहे हैं इनकार। नई संसद का राष्ट्रपति से उद्घाटन करवाने पर अड़ी कांग्रेस को जेडीएस ने दिया जवाब। कुमारस्वामी बोले, हम कांग्रेस के गुलाम नहीं। राहुल गांधी को पासपोर्ट मामले में मिली राहत। राउज एवेन्यू कोर्ट ने 3 साल के लिए दी एनओसी।
उत्तर प्रदेश में वंदे मातरम गाने को लेकर हुआ बवाल, बीजेपी और एआईएमआईएम पार्षदों के बीच जमकर हुई हाथापाई। टीपू सुल्तान की तलवार 140 करोड़ रुपए में बिकी, लंदन में हुई नीलामी में रिकॉर्ड। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।